Good morning, friends, and welcome to Trans India's exclusive series, Legends of Road Transport, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. Our legend for this month is someone, if you look at him, you may not think that he has spent a few decades in the road transport industry. But if looks can be deceiving, he is the perfect candidate for that. He started off in the road transport industry as part of a large family business. But with time, everybody went their way. And this youngster also went his own way with an aim to set a mark for himself and his company. He ventured out on his own and gradually grew within the small network that he had developed. For years, he continued within that network and made a name for himself. He set benchmarks in service within the given geography that he had focused upon. However, his strength grew multifold once his son joined the company, but not before completing his education from the United Kingdom. Trans India is pleased and happy to introduce our legend for the month, Guru Pratap Singh Gandhi from Surat Road King, along with his son Harmeet Singh, or Ricky as he is popularly known. Guru Pratap has made a name for himself, not just for the company but also for his contribution to the road transport industry. Guru Pratap has been very actively involved in transport associations. He has been the president of Bombay Goods Transport Association and is currently a managing committee member of All India Motor Transport Congress. Friends, this has been a very inspiring journey. I have known Guru Pratap personally for many years, and he may be a very friendly person, a very jovial person, but when it comes to work, he is dead serious about that. हमें इस बात की बेहद खुशी है कि लेजेंड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो गुरु प्रताप जी को उनके बेटे हरमीत सिंह ने दिया है. We feel very happy when the son hands over this certificate of being a legend to his father. It is definitely a very proud moment, friends. So let's dive into our interaction with Guru Pratap Singh Gandhi after this very short break. You are watching Legends of Road Transport, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. See you on the other side of this very short break. For over 70 years, we have been at the forefront of innovation. And today, that journey of innovation has become a revolution. Introducing Ashok Leyland Avatar, India's first and only modular truck platform. 450 engineers, 4 million man-hours, 6 million kilometers of testing across different terrains. One revolutionary truck platform. The Avatar range with iGen 6 technology is customized and tailored to your exact needs, giving you choice like never before. Your power to choose is spread across the entire range of configurations, from 18.5 to 55 tons. Building your truck starts with understanding your requirements. Every aspect of your truck is customized just the way you want it. So let's get going. Your choice of application, be it mining, construction, e-commerce deliveries, cement transportation, and lots more. Your choice of load and the type of road, so we can ensure there are no bumps along the way. Refine your truck further by choosing the engine power, driveline, suspension, cabin type, and load body. Once you've selected your configuration, your Avatar will reach you in no time. The Avatar range of trucks is not just a revolution in customization. It's a game-changing innovation that puts trucking in a new perspective. Modular trucks come with more durable aggregates, best-in-class performance, and reliability. Be it uptime or mileage, the Avatar range will transport your business to the next level and deliver unparalleled customer satisfaction. What's more, the Avatar range ensures remarkably low operating costs,
and in turn helps you maximize your profitability, making your business thrive. So don't just stay ahead of the competition. Leave them far behind by giving your business the revolutionary Avatar advantage. Ashok Leyland, आपकी जीत हमारी जीत। भाई साहब, हाँ बोलिए। अशोक लेलैंड ट्रक में कौन सा ऑयल डालना चाहिए? भाई नए ड्राइवर हो क्या? गल्फ एली ड्यूरामैक्स खास अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए बना है। पैक पर देखो साफ लिखा है, सिर्फ अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए ही नहीं बल्कि अशोक लेलैंड द्वारा सुझाया गया, खुद अशोक लेलैंड कह रहा है। सुन लिया? हाँ? एक सच्चा ट्रकर नींद में भी बता देगा कि गल्फ एली ड्यूरामैक्स ही है अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए बेस्ट ऑयल। एकदम सही कहा। गल्फ एली ड्यूरामैक्स अशोक लेलैंड के लिए बेस्ट ऑयल। Welcome back, friends, to Legends of Road Transport, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. We will be tracking the journey today of Guru Pratap Singh Gandhi, who is the founder and heads Surat Road King. गुरु प्रताप जी, आप रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कब और कैसे आए? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तो मैं बाई बर्थ हूँ, इसके अलावा कुछ और देखा ही नहीं। बट स्पेशली जो अगर आप ये कहो कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, वो 86 में शुरू हुई। उसके पहले मैं कानपुर था। 86 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ और वहाँ से सारा काम इंडिपेंडेंट फिर हो गया कि भाई जो भी डिसीजन लेना है मेरे को खुद ही लेना है और खुद ही काम करना है। गुरु प्रताप जी, सूरत रोड किंग कब शुरू हुई और इसके पहले प्रदीप कैरियर्स का क्या बिजनेस स्ट्रक्चर था? सूरत रोड किंग शुरू हुई 98 में। प्रदीप कैरियर कानपुर से थी। ये हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस था, जैसे हर फैमिली में होता है। 98 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपना करेंगे और बहुत एमिकेबली, कहीं कोई किसी में डिस्प्यूट नहीं। आज भी हम सब भाइयों में बहुत प्यार है और एमिकेबली हम लोगों ने डिसाइड करके 98 में मैंने सूरत रोड किंग शुरू की। और सूरत रोड किंग का बिजनेस मॉडल क्या था जब वो शुरू हुई? एक्चुअली लकली 95 में मैंने रिलायंस का काम शुरू किया सूरत हजीरा से। तो वो काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा था रिलायंस का। मैं पहले वहाँ से हजीरा सिलवासा दमन का काम करता था, उसके साथ साथ ईस्टर्न यूपी का भी करता था और वहाँ पे मेरे को बहुत ग्रोथ दिख रही थी। प्रदीप कैरियर में ही वो मैं काम कर रहा था। तो जब 98 में मैंने अपना नाम रखने की सोची तो कोई दिमाग में दूसरा थॉट नहीं था कि यार सूरत में इतनी प्रोग्रेस हो रही है तो क्यों नहीं सूरत रोड किंग ही क्यों ना नाम रखा जाए, और वहाँ से सूरत रोड किंग शुरू हो गई। गुरु प्रताप जी, आप जब बिजनेस में एंटर हुए उस वक्त आपकी एज क्या थी? काम तो मैंने 14-15 साल की एज से शुरू कर दिया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 86 से ली। गुरु प्रताप जी, 14 साल की उम्र में लोग अक्सर खेलने जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, लेकिन आप जब बिजनेस में आए या जब आप ऑफिस आना शुरू किया आपने, क्या एक सीरियस मोड था उस वक्त या एक शौकिया तौर से चलो हो आते हैं ऑफिस? हाँ, शौकिया भी और मतलब मेरे को पसंद भी था कि मैं काम करूं। ये पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, कुछ नहीं है, पता नहीं, मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो वही होता है ना, जो घर के निकम्मे बच्चे होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाता है। गुरु प्रताप जी, जब आपने सूरत रोड किंग शुरू की उस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कैसे थी? यार एक चीज़ बताऊं, उस टाइम पे सड़कों की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और दूसरी भी प्रॉब्लम जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कमाई अच्छी थी। रेट इतने अच्छे थे, ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी, मुंह मांगे रेट मिलते थे, ऐसी डर्टी कंपटीशन नहीं थी, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई। 98 में मेरे को याद है मेरे पास केवल 12 गाड़ियाँ थी और मुश्किल से मैं महीने की 5-6 लाख की टर्नओवर करता था, पर उस टाइम ज़्यादा खुशहाल था।
आज 400 गाड़ियां रख के भी उतनी खुशहाली नहीं है जितनी उस टाइम पे 12-13 गाड़ियां रख के थी। ये मेनली कंपटीशन की वजह से था। यस, आई कैन से। और कुछ मार्केट का सिनेरियो भी चेंज होता रहा। पहले उस जमाने में मिनिमम प्रॉफिट 25 से 30% की होती थी, और आज ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप 6% भी घर पे ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट तो भूल ही जाओ। गुरु प्रताप जी, श्रिंकिंग मार्जिन्स जो है, जो प्रॉफिटेबली कम होते जा रही है, ये कई टाइम से हम देख रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दा होता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, विथ नो सोल्यूशन ऑफ कोर्स। इसके कारण क्या है? इसमें 2-3 रीजन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कास्ट नहीं पता। कास्ट नहीं पता ये कहना तो खैर बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। उनको भी पता है टायर का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, वो सब पता है। लेकिन जब गाड़ी उसको सामने अपनी खड़ी नज़र आती है तो वो ये नहीं देखता कि इसमें खर्चा क्या आएगा। वो ये देखता है यार फलां आदमी इस रेट पे काम कर रहा है तो पक्का है कुछ कमा रहा है, तो मैं इससे 1% कम करके भी काम ले लूँगा तो काम चल जाएगा। तो वो एक पॉलिसी हो गई है कि भाई हमें लेना है। दूसरा, जो आजकल ऑनलाइन बिड शुरू हो गई है, ये ट्रेड के लिए स्वीट पॉइजन है। क्योंकि जिस टाइम हम ऑनलाइन बिड कर रहे होते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, उसमें मैं भी हूँ, चाहे कोई भी हो, सामने काम नज़र आता है, सामने वॉल्यूम नज़र आती है, और काम देख के उस टाइम पे कुछ नब्ज ऐसी हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि नहीं यार चलो चलो 1 पैसा और कम करके देख लेते हैं। वो 1 पैसा पर किलोमीटर आपने किया, उसका इफेक्ट कितना बड़ा है जब आप कैलकुलेट करते हो। और हम लोग क्या, हर ट्रांसपोर्टर सारी कैलकुलेट करके चार्ट शीट रख के बैठा होता है। उसको पता भी है कि ये 1 पैसा कम करने से, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टर होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको कि कास्ट का ना पता हो। लेकिन जब सामने कंपटीशन ऐसे चलती है, ये तो बोली वाली बात होगी। आप कहीं पे कोई चीज़ लेने जाते हो, जब ऑक्शन होती है तो अगर बढ़ रही है तो आप कहते हैं चल यार 10,000 और सही, चल यार 5,000 और सही, चल यार ये पसंद है लेनी है इसको और सही। तो वो चीज़ पे आके हम लोग किसी भी हद तक जाते हैं और काम लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी देखा गया है कि जीएसटी के बाद जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक डिवीज़न हुआ है आरसीएम और एफसीएम में, उसकी वजह से भी कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है। यस, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। मैं एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक वाकया आपको बताता हूँ। कंपनी ने जो रेट मांगे, कोटेशन मांगी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये प्लस जीएसटी आप जोड़ के दो। अब चूँकि मैं आरसीएम में था तो मैंने 5% जोड़ा, लेकिन मेरा कंपटीटर एफसीएम में था तो उसने 12% जोड़ा, और 1 पर किलोमीटर का रेट इंक्लूड होके आया। तो वो 12% जोड़ के दे रहा है और मैं 5% जोड़ के दे रहा हूँ। तो मैं पहले तो मैं L1 आया, लेकिन जब पूरी कैलकुलेशन हुई उसमें से 12% निकला तो L1 वो हो गया। तो मैंने तो 5% जोड़ के दिया, उस 5% में से मेरे को कुछ नहीं मिलना, लेकिन अगले ने जो 12% जोड़ के दिया उसमें से 6% भी उसको रिवर्स मिल गया, तो वो उसकी प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गई। गुरु प्रताप जी, अक्सर देखा गया है जो कंपनीज ज़्यादा ट्रक्स खरीदती हैं वो एफसीएम में जाती हैं, लेकिन आप फ्लीट बढ़ाने के बावजूद आरसीएम में अब तक टिके हुए हैं। कारण क्या है इसके? यस, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ अभी तक, उसमें मैक्सिमम बिजनेस रिलायंस का है। और रिलायंस की पॉलिसी ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी ट्रांसपोर्टर से डायरेक्ट बिजनेस नहीं करती। उन्होंने बीच में एक अपनी कंपनी क्विक सप्लाई चेन खड़ी कर रखी है।
तो जब क्विक सप्लाई चेन के अंडर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग लॉजिस्टिक टू लॉजिस्टिक में हो गए, तो वो हम FCM में होए या RCM में होए, हमें वही करना पड़ता है। यही एक रीज़न है कि पहले किसी टाइम पे मैं 100% रिलायंस का ही काम करता था, आज मैं 50% पे आ गया हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल से मैं FCM में चला जाऊँगा। और मेरी कोशिश ये होगी, एट द सेम टाइम रिलायंस का काम मैंने कम नहीं किया है और ना ही करूँगा और बढ़ाऊँगा, लेकिन बाहर का भी इतना काम पकड़ूँगा कि 60-40 या 70-30 पे आ जाऊँ। रिलायंस का बढ़ाते हुए भी साथ में दूसरे काम पकड़ूँगा ताकि ये FCM का कुछ तो बेनिफिट ले सकूँ, नहीं तो नई गाड़ियाँ बनानी ही मुश्किल हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे हमने कहा, इंडस्ट्री का ये जो विभाजन हुआ है RCM और FCM में, इसकी वजह से कंपटीशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स FCM में हैं उन्हें एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है फ्लीट खरीदने पर, लेकिन क्या इंडस्ट्री को एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, फिर वो चाहे RCM हो या FCM हो? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? हम ये जानेंगे गुरु प्रताप जी के साथ और बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, स्पॉन्सर्ड बाय अशोक लेलैंड and powered by Gulf Oil Lubricants. See you on the other side of this very short break. For over 70 years, we have been at the forefront of innovation. And today, that journey of innovation has become a revolution. Introducing Ashok Leyland Avatar, India's first and only modular truck platform. 450 engineers, 4 million man hours, 6 million kilometers of testing across different terrains. One revolutionary truck platform. The Avatar range with iGen 6 technology is customized and tailored to your exact needs, giving you choice like never before. Your power to choose is spread across the entire range of configurations, from 18.5 to 55 tons. Building your truck starts with understanding your requirements. Every aspect of your truck is customized just the way you want it. So let's get going. Your choice of application, be it mining, construction, e-commerce deliveries, cement transportation, and lots more. Your choice of load and the type of road, so we can ensure there are no bumps along the way. Refine your truck further by choosing the engine power, driveline, suspension, cabin type, and load body. Once you've selected your configuration, your Avatar will reach you in no time. The Avatar range of trucks is not just a revolution in customization. It's a game-changing innovation that puts trucking in a new perspective. Modular trucks come with more durable aggregates, best-in-class performance, and reliability. Be it uptime or mileage, the Avatar range will transport your business to the next level and deliver unparalleled customer satisfaction. What's more, the Avatar range ensures remarkably low operating costs and in turn helps you maximize your profitability, making your business thrive. So don't just stay ahead of the competition. Leave them far behind by giving your business the revolutionary Avatar advantage. Ashok Leyland, आपकी जीत हमारी जीत। भाई साहब, हाँ बोलिए। अशोक लेलैंड ट्रक में कौन सा ऑयल डालना चाहिए? भाई नए ड्राइवर हो क्या?
गल्फ एली ड्यूरामैक्स खास अशोक लीलैंड ट्रक्स के लिए बना है। पैक पर देखो साफ लिखा है, सिर्फ अशोक लीलैंड ट्रक्स के लिए ही नहीं बल्कि अशोक लीलैंड द्वारा सुझाया गया, खुद अशोक लीलैंड कह रहा है। सुन लिया? हाँ, एक सच्चा ट्रकर नींद में भी बता देगा कि गल्फ एली ड्यूरामैक्स ही है अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए बेस्ट ऑयल। एकदम सही कहा। गल्फ एली ड्यूरामैक्स अशोक लेलैंड के लिए बेस्ट ऑयल। Welcome back, friends, to Legends of Road Transport, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. We are in conversation today with Guru Pratap Singh Gandhi from Surat Road King. Guru Pratap ji, do you believe that इंडस्ट्री को एक ही सिस्टम के अंडर लाना चाहिए, फिर चाहे वो RCM हो या FCM हो? What are your thoughts on this? फिर तो कोई भी हो जाए, RCM होए या FCM होए, गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड कर दे, सबके लिए बेनिफिट होगा। तब सब एक कॉमन ट्रेन में आ जाएंगे, सबके खर्चे सेम हो जाएंगे और कंपटीशन एकदम प्रॉपर वे से होएगी। गुरु प्रताप जी, 1998 के बाद इंडस्ट्री में ऐसे कौन से मेजर चेंजेस देखे हैं आपने? टेक्नोलॉजी, हमने सॉफ्टवेयर वगैरह और काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हुए। जो हमारे पहले मैनुअल बिल बनते थे, अगर हम लोग को आज में भी मैनुअल बिल बनाने पड़े तो हम काम ही नहीं कर सकते। आज कंप्यूटराइज ज़माना है, एक जगह पे बैठ के सारी ब्रांचों के बिल बनते हैं। आज एक जगह पे बैठ के मेरी जितनी भी ब्रांचें हैं, जो भी हमने मार्केट की गाड़ियां लगाई, सबका एडवांस एक जगह से जाता है। आज ऑटोमेटिक जैसे ही भाड़ा चालान बना, किसको क्या एंट्री देनी है, ऑटोमेटिक एंट्रियां हो जाती हैं, केवल एक ऑथराइज करना है और गाड़ी वाले के अकाउंट में पैसा चला जाना है। उस ज़माने में एक एक को सब कैश बांटना पड़ता था, कैश लेके भागना पड़ता था। आज कोई कैश की ज़रूरत नहीं है। आज डीजल लेना है तो अपना कंपनियों के कार्ड बने हुए हैं, ड्राइवर को हमने कार्ड दिए हुए हैं, जितना डीजल देना है उसके कार्ड में यहाँ ऑफिस बैठे बैठे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको पैसा निकाल लेना। ये चीज़ें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसी के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। आपके पास नए हाईवेज़ है, एक्सप्रेसवेज है, राइट? सड़कें बड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सड़कें अच्छी भी हुई हैं और पहले से ज़्यादा भी हुई हैं, लेकिन साथ साथ में जो ट्रैफिक है वो भी बहुत बड़ा है। जितनी सड़कें और जितना ट्रैफिक बड़ा है, उस कंपैरिजन में सड़कें कम बन पाई हैं। गुरु प्रताप जी, व्हाट अबाउट द ऑन रोड एक्सपेंसेस? ये कितना बड़ा है सालों में? बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे को याद है 86 में मैं जब काम करता था तो जो ड्राइवर का खर्चा होता था वो मैक्सिमम 35% होता था, जिसमें डीजल और ड्राइवर का रास्ते का खर्चा। आज की डेट में वो 70% पहुंच गया है। मेनली ड्यू टू डीजल, आई थिंक। डीजल एंड टोल टैक्स नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है कि पहले जो डेप्रिसिएशन होता था वो केवल पेपरों में होता था, एक्चुअल में नहीं होता था। आज डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता है। पहले मैं जैसे 78 में बिज़नेस में आया, मेरे को अच्छी तरह से याद है टाटा की डंडा मर्सिडीज गाड़ी होती थी, 98,000 की गाड़ी होती थी, 95 पैसा लीटर डीजल होता था। और 3 साल चला के उसको जब बेचते थे तो रुपया 1.5 से 2 लाख मिलता था, और एक गाड़ी बेच के 2 गाड़ी बनाते थे। आज हम जब गाड़ी लेने जाते हैं, स्पेशली यूरो 6, 40 लाख की गाड़ी बनती है। आप 1 साल बाद भी बेचने जाओ तो अगर आपको 25 भी मिल गया तो वो आपकी किस्मत है। गुरु प्रताप जी, इंडस्ट्री तो बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, सब कुछ बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक प्रॉब्लम जो बढ़ते जा रहा है वो है शॉर्टेज ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। आपके कंपनी में क्या पोजीशन है ड्राइवर्स की? ये सब जगह है, कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा। क्या आप भी अपने ड्राइवर्स को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स देते हैं जैसे वो कंपनी में टिके रहे? यस, मेरे पास आज ऐसे भी ड्राइवर हैं जो कि मेरे पैदा होने के पहले से भी गाड़ियां चला रहे थे, उस फैमिली के ड्राइवर भी हैं।
हम लोगों ने बहुत सारे अपने पुराने ड्राइवरों को उनकी हेल्प करके, उनको फाइनेंस करके गाड़ियाँ भी बना के दी हैं, जिसकी वजह से वो अपने गांव से और दूसरे ड्राइवरों को भी लेके आते रहते हैं। गुरुप्रताप जी, करंटली व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्री फेस कर रही है? टोल, करप्शन। और इनका कोई सोल्यूशन? करप्शन का सोल्यूशन तो नज़र नहीं आ रहा। टोल का तो एक बार फिर अगर इंडस्ट्री साथ में बैठे, एक्चुअली जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमारी एसोसिएशन इतना नहीं कर पा रही है, या उसमें हम लोग सब मिलके नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को भी एक कास्ट एसोसिएशन की तरफ से बना के गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके हर गाड़ी का, जैसे ये 6 व्हीलर, 12 व्हीलर, 14 व्हीलर, 18 व्हीलर, मॉडल वाइज पर किलोमीटर पर टन का फिक्स रेट करना चाहिए। मिनिमम रेट फिक्स करना चाहिए, मैक्सिमम जो जितना मर्जी ले ले। अब एग्जाम्पल के तौर पे आज बॉम्बे में आप ऑटो में बैठो या टैक्सी में बैठो, सबके मीटर फिक्स हैं, वो उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। मेरी बहुत बार एसोसिएशन में मीटिंग हुई, सब ने कहा नहीं, रिवर्स लॉजिस्टिक में माल नहीं होता है, आप उसको कैसे पर किलोमीटर कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप अगर अंधेरी पे उतरे और आपने कहीं भी शाम के टाइम उतरे, तो आपको ऑटो या टैक्सी के लिए आपको क्यू में लगना पड़ेगा, तब वो आपका नंबर आएगा। लेकिन ऑटो या टैक्सी वाला रेट उस टाइम पे नहीं बढ़ा सकता। वही अगर आप सवेरे वहाँ पे आते हैं, क्योंकि सारे ट्रैफिक उस टाइम पे स्टेशन आने वाला होता है, तो बहुत सारे ऑटो टैक्सी खाली भी जाते हैं, तब वो क्यू में लगे होते हैं, लेकिन कोई भी रेट नहीं कम करता है, तब भी तो सेम रेट ही चलता है ना। हमको भी ऐसा कुछ करके गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके एक रीजनेबल ऐसा रेट बनाना चाहिए। गुरुप्रताप जी, करंटली व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्री फेस कर रही है? टोल, करप्शन। और इनका कोई सोल्यूशन? करप्शन का सोल्यूशन तो नज़र नहीं आ रहा। टोल का तो एक बार फिर अगर इंडस्ट्री साथ में बैठे, एक्चुअली जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमारी एसोसिएशन इतना नहीं कर पा रही है, या उसमें हम लोग सब मिलके नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को भी एक कास्ट एसोसिएशन की तरफ से बना के गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके हर गाड़ी का, जैसे ये 6 व्हीलर, 12 व्हीलर, 14 व्हीलर, 18 व्हीलर, मॉडल वाइज पर किलोमीटर पर टन का फिक्स रेट करना चाहिए। मिनिमम रेट फिक्स करना चाहिए, मैक्सिमम जो जितना मर्जी ले ले। अब एग्जाम्पल के तौर पे आज बॉम्बे में आप ऑटो में बैठो या टैक्सी में बैठो, सबके मीटर फिक्स हैं, वो उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। मेरी बहुत बार एसोसिएशन में मीटिंग हुई, सब ने कहा नहीं, रिवर्स लॉजिस्टिक में माल नहीं होता है, आप उसको कैसे पर किलोमीटर कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप अगर अंधेरी पे उतरे और आपने कहीं भी शाम के टाइम उतरे, तो आपको ऑटो या टैक्सी के लिए आपको क्यू में लगना पड़ेगा, तब वो आपका नंबर आएगा। लेकिन ऑटो या टैक्सी वाला रेट उस टाइम पे नहीं बढ़ा सकता। वही अगर आप सवेरे वहाँ पे आते हैं, क्योंकि सारे ट्रैफिक उस टाइम पे स्टेशन आने वाला होता है, तो बहुत सारे ऑटो टैक्सी खाली भी जाते हैं, तब वो क्यू में लगे होते हैं, लेकिन कोई भी रेट नहीं कम करता है, तब भी तो सेम रेट ही चलता है ना। हमको भी ऐसा कुछ करके गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके एक रीजनेबल ऐसा रेट बनाना चाहिए। गुरुप्रताप जी, आप बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपके टेन्योर में ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर आपने फोकस किया? मैंने इसी को बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये बताते हुए मेरे को कोई हिचक नहीं है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया। आप अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमेटी में भी हैं और जो AIMTC के प्रेसिडेंट हैं वो भी वेस्ट जोन से हैं। आपके राय में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो AIMTC को प्रायोरिटी पर लेने चाहिए? देखो,
AIMTC को मेन तो पॉलिसी मैटर पे ही आना चाहिए, पॉलिसी मैटर पे ही डिस्कशन होनी चाहिए। और पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट के साथ बैठ के सही ढंग से ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिससे कि करप्शन ख़त्म हो। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम बॉर्डर पे जाके शोर मचा लें, भीड़ इकट्ठी कर लें, तो वहाँ उससे क्या होगा, जो वहाँ के लोकल 2-4 लोग हैं केवल उनको बेनिफिट होगा, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं होगा। आज किसी बॉर्डर पे ज़्यादा करप्शन है, आप चीफ मिनिस्टर को मिलो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मिलो और स्ट्रांगली एक बार मिल के आगे उससे नहीं होएगा, हमको उसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा और लगातार पीछे पड़ के उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो वही होएगा कि जो वहाँ के लोकल हैं, क्योंकि जब हम बॉर्डर पे जाते हैं तो लोकल 2-4-5 लोग साथ में होते हैं और उनको वैसे ही बॉर्डर पे कुछ नहीं लगता है, तो उनको ही बेनिफिट होएगा, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं होएगा। गुरु प्रताप जी, आज से कुछ साल पहले देखा गया था कि जो यंगस्टर्स हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नहीं आना चाह रहे हैं, फैमिली बिजनेस से दूर भाग रहे थे, फिर चाहे उन्हें नौकरी करनी पड़े या फॉरेन जाना पड़े, कई ऑप्शन थे उनके पास। क्या आपको अपने बेटे को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करना पड़ा या इट वाज ईजी प्रोसेस? विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसको मैंने कहीं पे भी फोर्स नहीं किया। उसने कहा कि मेरे को MBA करनी है, मैंने कहा तेरा सब्जेक्ट क्या? उसने कहा लॉजिस्टिक, मैंने कहा ज़रूर करो। उसने कहा मैं UK जाना चाहता हूँ, कार्डिफ यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ, मैंने कहा ज़रूर करो। जब उसने वहाँ पे MBA की तो यूनिलीवर से उसको मौका भी मिला। उसने मेरे से पूछा पापा क्या करें? मैंने कहा चॉइस इज योर। मैंने उसे बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि तू यहाँ आके मेरे साथ रहे या तू वहाँ पे काम कर। मेरे बहुत दोस्तों ने कहा कि बुला ले जल्दी टाइम से, नहीं तो फिर वो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा यार मेरी किस्मत। उसका रीज़न ये था कि मैं हमेशा ही सोचता था कि ठीक है बचपन में मैं मस्ती में रहा, मैंने एजुकेशन नहीं की, तो मेरे दिमाग में था कि बच्चों को मैंने एजुकेशन के लिए कहीं पे भी नहीं रोकना है, जितना उनकी इच्छा है। मेरी बेटी ने भी अपना लंदन फैशन ऑफ स्कूल से MBA की, मैंने करवाई। मैंने कहा नहीं जाओ करो। तो वो था, लेकिन जब उसने किया, उसने यूनिलीवर ज्वाइन नहीं की, उसका खुद का ही मन था, उसको पता था यहाँ पे टचवुड अच्छा बिजनेस है और उसका इंटरेस्ट भी था इस लाइन पे, और उसके आने से ग्रोथ हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं अकेला होता तो शायद आज 100-150 गाड़ियों में ही खुश रहता और इतना ना बढ़ाता, और शायद जो आज टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस गए वो शायद ना जाता। गुरु प्रताप जी, आई हैव नोन रिकी पर्सनली और बहुत ही मेहनती लड़का है वो, आई एम श्योर अबाउट दैट। रिकी के आने के बाद कंपनी में क्या चेंजेस देखे आपने? सिस्टमेटिक, सिंपल शब्दों में हम लोग सिस्टमेटिक ज़्यादा हो गए। पहले जो लाला की दुकान थी कि जो कुछ करना है मेरे को ही करना है, हर चीज़ मेरे को ही करनी है, उस चीज़ से हट के अब केवल अप्रूवल सिस्टम पे आ गए। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक बहुत अहम मुद्दा कुछ सालों पहले तक था कि यंगस्टर्स बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मुद्दा ये भी था कि जो यंगस्टर्स बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें फ्री हैंड नहीं था। ऑल्दो दे यूज्ड टू डू ऑल द हार्ड वर्क, बट दे डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक मेजर डिसीजंस। सो हाउ मच हैज़ गुरु प्रताप given his son Ricky the free hand to work? Coming up after this very short break, we will know more about the grooming of Ricky और कैसे ये बाप बेटे की जोड़ी ने अपने कंपनी का फ्यूचर प्लान किया है। आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, स्पॉन्सर्ड बाय अशोक लेलैंड एंड पावर्ड बाय गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। We'll see you on the other side of this very short break.
For over 70 years, we have been at the forefront of innovation. And today, that journey of innovation has become a revolution. Introducing Ashok Leyland Avatar, India's first and only modular truck platform. 450 engineers, 4 million man-hours, 6 million kilometers of testing across different terrains. One revolutionary truck platform. The Avatar range with iGen 6 technology is customized and tailored to your exact needs, giving you choice like never before. Your power to choose is spread across the entire range of configurations, from 18.5 to 55 tons. Building your truck starts with understanding your requirements. Every aspect of your truck is customized just the way you want it. So let's get going. Your choice of application, be it mining, construction, e-commerce deliveries, cement transportation, and lots more. Your choice of load and the type of road, so we can ensure there are no bumps along the way. Refine your truck further by choosing the engine power, driveline, suspension, cabin type, and load body. Once you've selected your configuration, your Avatar will reach you in no time. The Avatar range of trucks is not just a revolution in customization. It's a game-changing innovation that puts trucking in a new perspective. Modular trucks come with more durable aggregates, best-in-class performance, and reliability. Be it uptime or mileage, the Avatar range will transport your business to the next level and deliver unparalleled customer satisfaction. What's more, the Avatar range ensures remarkably low operating costs and in turn helps you maximize your profitability, making your business thrive. So don't just stay ahead of the competition. Leave them far behind by giving your business the revolutionary Avatar advantage. Ashok Leyland, आपकी जीत हमारी जीत। भाई साहब, हाँ बोलिए। अशोक लेलैंड ट्रक में कौन सा ऑयल डालना चाहिए? भाई नए ड्राइवर हो क्या? गल्फ एली ड्यूरामैक्स खास अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए बना है। पैक पर देखो, साफ लिखा है, सिर्फ अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए ही नहीं, बल्कि अशोक लेलैंड द्वारा सुझाया गया, खुद अशोक लेलैंड कह रहा है। सुन लिया? हाँ? एक सच्चा ट्रकर नींद में भी बता देगा कि गल्फ एली ड्यूरामैक्स ही है अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए बेस्ट ऑयल। एकदम सही कहा। गल्फ एली ड्यूरामैक्स अशोक लेलैंड के लिए बेस्ट ऑयल। Welcome back, friends, to Legends of Road Transport, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. We are in conversation today with our legend for the month, Guru Pratap Singh Gandhi from Surat Road King. Guru Pratap ji, how much free hand have you given Ricky to take decisions? वो किस हद तक decisions ले सकता है? 100%। केवल एक जगह पे मैं उसकी नब्ज पकड़ के रखता हूँ कि रेट कम नहीं करने क्योंकि वो भी जब ऑनलाइन बैठता है तो उसकी भी धड़कन छोड़ना नहीं है, तब मैं ऐसे पकड़ता हूँ कि छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका जो सूरत का जो बिज़नेस है वो रिकी के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। एम आई राइट? यस, नो डाउट। एक्चुअली सूरत डेवलप हुआ मेरे ख्याल से 94 या 93 में वहाँ पे फ्लैग आया था। उसके बाद जो सूरत की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे कमिश्नर मेरे ख्याल से मिस्टर राव, चंद्रशेखर राव, या शायद नाम मैं अगर भूल रहा हूँ तो, जो उन्होंने सूरत में सफाई कराई,
मैं कहूँगा आज सूरत का नाम बदल के खूबसूरत रख देना चाहिए। आप सूरत की रोडें देखो, सूरत सिटी के अंदर 8 लाइन की रोडें हैं। साइकिल वालों के लिए अलग है, पैदल चलने वालों के लिए अलग है, बस के लिए अलग है, कारों के लिए अलग है, पार्किंग की पूरी सुविधा है, रोड क्रॉस करने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, एयर कंडीशन बस स्टैंड बने हुए हैं। क्या चाहिए आपको? और साफ सुथरा, आपको कहीं पे भी पान की थूक नहीं मिलेगी। आप सवेरे 6 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, लोग झाड़ू मारते हुए, जो वहाँ की सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है सफाई की, वहाँ पे मतलब चीज़ ही अलग है। इनफैक्ट रिकी कई सालों से सूरत में ही रहा है, इवन लॉकडाउन के वक्त भी वो सूरत में ही था पूरे टाइम। आज भी वो हफ्ते में 3 दिन रहता है, इसीलिए वहाँ मकान बना लिए है कि चलो भाई। और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो रेगुलर रहता है, लेकिन जब बच्चों को छुट्टियां हों, बड़ी छुट्टियां हो, तो वो 15-15, 20-20 दिन के लिए चला जाता है फैमिली लेके। गुरु प्रताप जी, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ सूरत रोड किंग फ्रॉम हियर ऑन? एक तो 3PL, दूसरा वेयर हाउसिंग। गुरु प्रताप जी, आई हैव नोन यू एज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन। आपकी चाहे ज्योग्राफी काम की लिमिटेड हो, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो बहुत अग्रेसिव रहा है उसी जोन में। आप में और रिकी में ज़्यादा अग्रेसिव कौन है इस वक्त? बट नेचुरल अब वही होएगा। अब मैं तो बैक गियर पे आ रहा हूँ, फ्रंट गियर पे तो वही है। वो एग्रेसिव है, लेकिन कई बार उसको मैं रोकता हूँ। बीच में उसने मेरे को रोड ब्रेकर मेरा नाम दे दिया था। लेकिन ठीक है, वो भी ज़रूरी है। इज गुरु प्रताप प्लानिंग टू रिटायर एनी टाइम सून? रिटायर की परिभाषा क्या है मेरे को नहीं समझ में आती। आज अगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ ऑफिस, चाहे 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 4 बजे चला जाऊँ, 5 बजे चला जाऊँ, 6 बजे चला जाऊँ, मेरी मर्जी से, तो ये रिटायरमेंट ही है ना। राइट। तो ऑफिशियली रिटायरमेंट होने की ज़रूरत ही क्या है? अपनी मर्जी से आओ, काम करो, जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? रिटायरमेंट की कोई एज मेरे हिसाब से नहीं है। और बिजनेसमैन के लिए रिटायरमेंट नाम की कोई शब्द होता भी नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बताओ ना, हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जिनकी एज 75 के ऊपर हो गई है, वो नहीं आज तक रिटायर हुए, तो हम लोग कैसे रिटायर होने की सोच सकते हैं? फाइनली गुरु प्रताप जी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री? हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, दिखता तो बहुत अच्छा है। एक तरफ लगता है कि पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का मानना है कि भाई हम आज की डेट पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है 70% है और 30% अलग मोड्स हैं। उनका ये सोचना है कि रोड ट्रांसपोर्ट को हम 30% पे ले आएँ और 70% पे बाकी मोड्स को ले आएँ। और उसके लिए गवर्नमेंट, मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी कोशिश भी कर रही है। नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ कर रहा है और जिस हिसाब से लग रहा है कि चाइना शायद वीक पड़े, बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ पे बिजनेस भी इतना बढ़ जाए कि उस 30% में भी हम लोग सफिशिएंट काम कर पाएँ। Friends, as we can see clearly that Guru Pratap has groomed his son for taking over the reins of Surat Road King and has a well chalked out plan for the future of the company. While the company is looking to grow its share of business with Reliance, it is also looking to grow outside of the business with Reliance. With a young legend by his side, Ricky sure has a strong support system. We hope you have been enjoying our Legend of Road Transport series, sponsored by Ashok Leyland and powered by Gulf Oil Lubricants. We will be back again next month with another legend of road transport who has spent decades in the road transport industry. Please do not forget to subscribe to our channel. Until next week, stay safe. Jai Hind.